और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय पीसी कर रहा है SARS-CoV-2 infection transmission. Now, what is a serosurvey? A serosurvey, we collect blood samples from a general population and test them for IgG antibodies. And if the antibody test is positive, it means that the person has been infected in the past. And what do we expect from these serosurveys? We expect to see the percentage in the general population, who is at a higher risk of getting infection, which are the areas which need more contained efforts, which need to be strengthened. And the objective is to provide scientific guidance from time to time, and that is the purpose of this one of the very early surveys that we have done, and multiple surveys will be done as we go on to guide. And similarly, we have been providing the scientific evidence either through the National Task Force or the Joint Monitoring Group to the government, which is the National Task Force chairman is Dr. Vinod Paul, and the Joint Monitoring Group is chairman of the DGHS, and we've been providing scientific evidence. So now let's come to this serosurvey. So this was the first serosurvey conducted in May in collaboration with the state health departments, in collaboration with the NCDC and the WHO. And basically it had two parts. The first part was to estimate a fraction of population to be infected with SARS-CoV in the general population, and that was the part that is completed at the moment. And the second part is to look at the prevalence of this SARS-CoV-2 infection in containment zones in hotspot cities, and that is ongoing as we speak. Now the data was collected, as I mentioned. We took it a written informed consent and ethics clearance, and 3 to 5 ml of venous blood was taken, and then this sera was evaluated for the Ig antibodies by the ELISA test, and this ELISA test is also being made available to the states to carry out serosurvey in different groups of individuals within their states. Now in this, the part one of the survey, which is complete, we had was a population-based serosurvey in which several districts were studied and divided into 4 groups, and in each group, whether it is 0 prevalence by RT-PCR or 0 to 5 or 5 to 10 or more than 10% per million cases in different districts, were divided into 4 groups, and 15 districts were in each group, and 400 individuals were studied from each district. And then from each village or urban area, we selected 10 villages and 40 adults, and every household one adult was studied. So we actually studied about 83 districts in the country, and number of households that were visited were 28,595, and we were able to collect the blood samples and the data from 26,400 individuals. The results were that we found that about 0.73% of the population in these districts showed a prevalence of past exposure to SARS-CoV-2 infection. This means that the lockdown and the containment measures have been successful in keeping it low and preventing rapid spread of this disease over the last 3 months as we speak. However, it means a large proportion of the population is still susceptible. And which were the individuals which were higher at risk? Risks was slightly higher in urban areas, 1.09 compared to 1, and it was higher in urban slums, nearly 1.89 times higher than rural areas. But the good news is that the infection fatality rate was very low. It was 0.08% as far as this 26,000 individuals was looking at the population. The infection in the containment zone were found to be high and variable, and this is still ongoing, and this data is still being looked at. So in conclusion, I would like to say, since a large proportion of our population is still vulnerable and susceptible to infection,
we have to work on the non-pharmacological interventions such as physical distancing, use of face mask, hand hygiene, cough etiquette, and urban slums are highly vulnerable for the spread of infection, and the local lockdown measures need to continue as advised by the Government of India, particularly in those containment areas, and they have been successful up till now in containing them. And the high-risk groups of our population, that is the elderly, people with chronic morbidities, pregnant women, children below the age of 10 years, they need to be particularly protected, and efforts to limit the scale and spread of the disease will have to be continued by strong implementation of containment strategies by all the states. And the states cannot, and I emphasize here, the states cannot lower their guard and need to keep on implementing effective surveillance and containment strategies for preventing the spread of this disease. So I will stop here, and I'd request Professor Vinod Paul to give his wisdom. Thank you, Professor Bhargav. You can have the last slide on, conclusion slide if possible. So आज एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सूचना, डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है। 24,000 लगभग इसमें पार्टिसिपेंट सम्मिलित हैं। उन ज़िलों में जाके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, और मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सीरो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है कोविड के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका महत्व हमारे लिए सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की नॉलेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे कोविड की रिस्पांस को, देश की जो स्ट्रैटेजी है उसको ये फाइन ट्यून करती है। साइंस हमें कोविड को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोविड को जीतने के लिए जो हमें गाइड करता है वो हमारी स्ट्रैटेजी का एक केंद्र बिंदु है, और ये उसी श्रृंखला में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इससे जो उभर के आता है वो ये है, जैसे डॉक्टर भार्गव ने क्लियरली कहा, कि इन जिलों में देखा जाए तो 1% से लेस पॉपुलेशन, 0.73 पॉपुलेशन में कोविड का प्रकोप अभी तक हुआ है। आपको ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ये 30 अप्रैल के लगभग जो स्थिति है वो उसको दर्शाते हैं ये, क्योंकि ये स्टडी जो करी गई वो 3rd वीक ऑफ मई में करी गई मोस्टली, और 15 दिन लगते हैं एंटीबॉडी को आने के लिए। तो जो स्थिति दिखाई दे रही है ब्रॉडली, वो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, देश में कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी जा रही थी। लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण को रोकने में हमारे देश ने सफलता हासिल की है, और हमारे देश में कोरोना के मामलों के ताज़ा आंकड़े भी आ चुके हैं। कोरोना केस 2,86,000 के पास पहुंच चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई, लेकिन राहत की बात भी यहाँ पर है, और वो राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,41,000 के पार है। ये कुल मामले देखिए इतने हैं। हालांकि गंभीर बात यह भी है कि 8,102 ऐसे केसेस भी हैं जो अब हमारे बीच ये लोग नहीं रहे, इनकी मौत यहाँ पर हुई है, लेकिन ठीक हुए हैं 1,41,029 कोरोना संक्रमित। ये एक राहत की बात है, क्योंकि ठीक होने वालों का जो रेट है वो हमारे देश में काफ़ी अच्छा है। इस समय एक्टिव केस 1,37,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट आई है वो 10,000 केस कल पिछले 24 घंटों में हमारे और बढ़ गए हैं, कोरोना संक्रमित हुए हैं। और ये डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे का जो अपडेट है वो 9,996, आप इसे 10,000 कह सकते हैं, लेकिन ठीक हुए हैं 5,823 और 357 लोगों की मौत भी हुई है। ये पिछले 24 घंटे का अपडेट है, जो कि काफ़ी डराता है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। फिलहाल कोरोना की जो रफ्तार है वो देखिए किस तरह से बढ़ रही है। 18 मई को 1 लाख केसेस थे, लेकिन 2 जून को ये 2 लाख हो गए, और 10 जून को
2,86,000, यानी कि लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 यानी कि अनलॉक दूसरा फेज भी शुरू हो चुका है। मंदिर, मस्जिद, रेस्टोरेंट, मॉल अब खुल चुके हैं। लगभग पूरा देश जो है वो खुल चुका है। कंटेनमेंट जोन जो है उन्हें छोड़कर, जो हॉटस्पॉट और जो कंटेनमेंट हैं उन्हें छोड़कर लगभग सब कुछ खुल चुका है। सबसे आगे अभी भी महाराष्ट्र बना हुआ है। कोरोना विस्फोट इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 लाख के लगभग महाराष्ट्र में आंकड़ा पहुंचने वाला है। दिल्ली उसके बाद है और 3,438 मौतें महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। दिल्ली उसके बाद है। लेकिन इस वक्त ये देखिए कुल जो केसेज हैं 1 लाख की जो हम बात कर रहे हैं, 94,000 को क्रॉस कर चुका है महाराष्ट्र और 3,438 मौतें, जबकि दिल्ली में 984 मौतें। 24 घंटों में 3,254 केस यहाँ पर आए हैं और दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है 1501। 149 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 48 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा है। ये आंकड़ा जो है वो अभी तक का रिकॉर्ड है दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह में। दिल्ली में 1500, महाराष्ट्र में 3,000 को क्रॉस कर गया है ये आंकड़ा। महाराष्ट्र में मुंबई की बात करें तो 52,000, सिर्फ आधे से ज्यादा मुंबई में है। 1,857 मौतें मुंबई में हो चुकी है। लेकिन मुंबई में जो सबसे प्रभावित इलाका था यानी कि धारावी की स्थिति काफी सुधर रही है और धारावी में पिछले 48 घंटों में मौत का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है और उसने डबल डिजिट को क्रॉस नहीं किया है। 24 घंटों में 1,567 केस सामने आए हैं, लेकिन 57 मौतें यहाँ पर हुई हैं, जो एक खतरनाक बात है मुंबई में। तो मुंबई की यह डरावनी रफ्तार है, लेकिन 97 मौतें यहाँ पर हुई हैं और धारावी का हमने जिक्र किया कि धारावी की स्थिति मुंबई में सुधर रही है। मुंबई के बाद जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो दिल्ली है। 32,810 केस, 12,242 ठीक भी हुए, लेकिन मौत काफी ज्यादा हुई हैं, 984। दिल्ली में 984 मौतें हुई हैं। ये डराने वाला मामला है। तो दिल्ली और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मुंबई और दिल्ली में कोरोना विस्फोट जो है वो काफी तेजी से हो रहा है। कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार डरावनी होती जा रही है, डरा रही है। 24 घंटों में दिल्ली का अगर जिक्र करें तो ये अभी तक का रिकॉर्ड है। जब से कोरोना की शुरुआत हुई 1501 मामले सामने आए, लेकिन 384 ठीक भी हुए। मौत का आंकड़ा भी डराता है, 48 लोगों की मौत हुई है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड अगर हम राज्यों की बता दें आपको यहाँ पर, तो महाराष्ट्र सबसे आगे बना हुआ है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में 10 लाख टेस्ट पर यह आंकड़ा है। मध्य प्रदेश जो कि शुरुआती दौर में काफ़ी आगे था, वो अब राजस्थान के भी बाद चला गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में मृत्यु दर भी अब कम हुई है और वो 4 के लगभग है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, चौथे नंबर पर गुजरात है। लेकिन मृत्यु दर पर आपको ध्यान देना होगा, तमिलनाडु में मृत्यु दर सबसे कम फिलहाल बनी हुई है बिहार के बाद। तो दिल्ली में कोरोना बेहद तेज रफ्तार से भाग रहा है। इलाज टेस्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज पर्याप्त बेड होने का भरोसा जता दिया है और साथ ही साथ ये आदेश भी दिया है कि कोरोना के टेस्ट करने वाली लैब को 24 घंटे में ही अब अपनी रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली में 42 लैब्स चल रही हैं। 7 लैब्स को सिर्फ इस वजह से कि वो रिपोर्ट्स बहुत लेट दे रहे थे। 7 लैब्स को 2 या 3 दिन के लिए रोका गया था। उनसे कहा गया था कि अपनी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देंगे। आप सोच के देखिए ना, आपने टेस्ट दे दिया, पहले तो टेस्ट पॉजिटिव आता है 5 दिन के बाद। आपने टेस्ट दिया, उसकी आपकी 7 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है। 12 दिन हो गए, 10-12 दिन में तो ठीक भी हो जाते हैं, 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उस रिपोर्ट का करेंगे क्या? आप उस पॉइंट को मिस कर रहे हैं जिस पॉइंट की वजह से हमने सख्ती की थी। आप कह रहे हैं 42 लैब्स हैं, सारी चल रही हैं। हाँ, ये सख्ती जरूर है कि अगर आप सैंपल लेते हैं 24 घंटे में। आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है। ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है। 100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हम। इसकी फैलने की गति सबसे ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर इसको पेंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी।
गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में करीब 2.5 महीने बाद आज से मॉल्स खुल गए हैं। नियमों शर्तों के साथ मॉल्स को खोल दिया गया है। देश में पहले ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च यानी कि धार्मिक स्थल खुल चुके थे। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खुल गए हैं मॉल्स। गाजियाबाद में 2.5 महीने के अंतराल के बाद आखिरकार मॉल्स को खोल दिया गया। तमाम सुरक्षा के इंतजाम मॉल में किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक खास इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि मॉल के अंदर अलग से एक आइसोलेशन रूम बनाया गया है कि अगर कोई भी शख्स अचानक यहां पर संदिग्ध पाया जाता है तो उसको फौरन भीड़ से निकाल करके इस रूम के अंदर लेकर के आते हैं। आपको दिखाते हैं इस रूम के अंदर क्या है। यहाँ पे बाकायदा व्हील चेयर रखी गई है, इसके अलावा एक बेड यहाँ पर तैयार किया गया है और यहाँ पर कुछ सामान भी रखा हुआ है, जैसे कि पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइजर। हमारे साथ मॉल के मैनेजर संजीव शर्मा जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए क्या व्यवस्था, आखिर ये आइसोलेशन रूम बनाने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आइसोलेशन रूम की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग गेट पे तो सारा थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन करा के भेज रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी कस्टमर को या किसी और पर्सन को कोई दिक्कत आती है मॉल में अंदर आने के बाद, किसी को सिम्टम्स दिखाई देते हैं कोविड को, तो हम इमीडिएटली उनको यहाँ शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इस तरह से कोई पेशेंट है, संदिग्ध पेशेंट है, तो उसको यहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ले जाएगा। क्या क्या रखा है आपने, व्यवस्था क्या की हुई है? हमने यहाँ पीपी किट रखवाया है, ये आप देख रहे हैं। ये हमने सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर रखा है, मास्क है, ग्लव्स हैं और थोड़ा सा रखा हुआ है। जाहिर तौर पर तो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं आइसोलेशन रूम के अंदर भी कि अगर कोई शख्स को सिम्टम्स आते हैं तो फौरन यहाँ पर लाया जाएगा, उसको भीड़ भाड़ से अलग रखा जाएगा, पीपी किट पहनाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क दिया जाएगा और उसके बाद फौरन एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी इत्तला दी जाएगी। तमाम एहतियात मॉल भी अपनी तरफ से फिलहाल बरतने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन संजय समीर और मयंक गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मॉल्स खुल गए। इस खबर के बाद महाराष्ट्र का रुख। महाराष्ट्र में जितने केसेस हैं आधे से ज़्यादा मुंबई में हैं। हालत ख़राब है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई वालों को चेताया है कि लॉकडाउन ख़त्म ज़रूर हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं कि आप ख्याल नहीं रखें। अगर ऐसे ही लोग बाहर निकलते रहे तो मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में एक बार फिर से वो लॉकडाउन कर देंगे। 24 घंटों में संक्रमित 1567 हैं, 97 लोगों की मौत हो चुकी है, 52,667 संक्रमित हैं और 1,857 कुल मौतें अभी तक हो चुकी हैं। तो ये डराने वाला आंकड़ा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के लोगों को चेता रहे हैं, मुंबई के लोगों को खास तौर से, क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आप लॉकडाउन फिर से चाहते हैं क्या? ये चेतावनी उन्होंने दे दी। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी करू शकते तर नाईलाजाने करायची, आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। महाराष्ट्र में कोरोना से दहशत के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। आईआईटी मुंबई के 2 प्रोफेसर्स ने एक स्टडी में ये पाया है कि ज्यादा गर्मी और कम नमी वाले इलाकों में कोरोना का फैलना कम होता है। ऐसे मौसम में खांसने और छींक से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको सूखने में कम समय लगता है। दोनों ने दुनिया के 6 शहरों में इसका अध्ययन किया है। हमने पता लगाया कि ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो ड्रॉपलेट थोड़ी देर से ड्राई होगी, तो इसका मतलब वायरस ज्यादा देर तक ड्रॉपलेट के अंदर रह सकता है। अगर तापमान ज्यादा है तो ड्रॉपलेट जल्दी इवापोरेट होगी या ड्राई आउट होगी, तो उसमें वायरस जल्दी खत्म हो सकता है। सरफेस पे अगर सरफेस ऐसी है कि जिस पर ड्रॉपलेट स्प्रेड नहीं हो रही या फैल नहीं रही है तो उसमें वायरस ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह से हमने इन पैरामीटर्स को स्टडी किया और इन पैरामीटर्स से फिर हमने पता लगाया कि अगर आपकी सरफेस फोन स्क्रीन है तो उसको जल्दी से क्लीन करना पड़ेगा। अगर जल्दी क्लीन नहीं करोगे तो उसमें कंटामिनेशन और वायरस ज़्यादा देर तक रह सकता है और तो उसके लिए इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसी तरह से ग्लास को ड्रॉपलेट जल्दी फैलेगी तो उसको इतना जल्दी क्लीन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग, अगर आदमी छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं मुंह से, नाक से, तो वो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे जाके बैठ सकती हैं और अगर दूसरा आदमी उसके कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन पहले आदमी से दूसरे आदमी पर पास ऑन हो सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखना, समझना कि ये ड्रॉपलेट जो सरफेस पर है वो कितनी देर में ड्राई आउट हो जाएंगे,
क्योंकि एक बार ड्रॉपलेट्स ड्राई आउट हो जाएंगे तो वायरस अगर है भी उसमें पहले आदमी की वजह से तो वो वायरस मर जाएगा। और आइए अब आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार की खबर बताते हैं। बिहार में कोरोना के केस 5,500 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आधे से ज्यादा मरीज यहां पर ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अब तक 33 लोग बिहार में कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एक दिन में 115 नए केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। कहा है कि संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। कुल केस 5,710, 3,071 ठीक हुए हैं, लेकिन 33 ऐसे कोरोना संक्रमित हैं जिनकी मौत भी हुई। नीतीश कुमार ने क्या कहा, आइए जल्दी से आपको सुनवाते हैं। लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। ये निर्णय है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन खत्म है, सब बाहर जा सकते हैं, लेकिन 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हों, गर्भवती महिलाएं हों, 10 साल तक से के उम्र वाले बच्चे और बच्चियां हों, और अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति हो, इनको घर से बाहर अकारण नहीं निकलना चाहिए। इलाज के लिए जाना है जाएंगे, बहुत जरूरी कोई बात होगी जाएंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे होते हैं और खबरों के साथ हाजिर आप देखते रहिए आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव से पहले खरीद फरोख्त का चैप्टर खुल गया। संगीन आरोप राज्य के मुख्यमंत्री ने लगाया। हालांकि डिप्टी सीएम कुछ और राग अलाप रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का हवाला देते हुए पूछ लिया कि आखिर किसने दिए 35 करोड़ रुपए और किसको दी। जयपुर के शिवविलास होटल के बाहर पहरा है। सादी वर्दी में पुलिस के जवान हैं। आने जाने वालों पर पैनी नजर है। कांग्रेस के विधायकों को कोरोना से ज्यादा टूटने का खतरा सता रहा है, लिहाजा शहर से 25 किलोमीटर दूर 5 स्टार रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायक पॉलिटिकल क्वारंटीन में चले गए। राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी ड्रामा शुरू हुआ तो विस्फोटक बयान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सबसे पहले दिया। ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले। हालांकि मध्य प्रदेश के 22 MP गए हैं, वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुसने वाले क्षेत्र के अंदर लोग कहते हैं 25 करोड़ में भेजे लोग हो, किस पूछा है वापस? 5 साल ही भेजा हमने आपको, अब आ गए जल्दी क्यों आए भाई? और बीजेपी वाले टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ के बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहता हम कहाँ जाएंगे। गहलोत का ये बयान यूं ही नहीं है। 19 जून को राजस्थान में 3 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव है। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। संख्या के भरोसे कांग्रेस को लगता है कि वो दोनों सीटें जीत जाएगी, लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी नया दांव चल दिया। बीजेपी ने भी मैदान में 2 उम्मीदवार उतारकर मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया है। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इस खेल को कांग्रेस खरीद फरोख्त के चश्मे से देख रही है, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट में लॉक हो गए। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है तो राजस्थान में सियासी घटनाक्रम भी तेज हो गई है। कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन था, देश अनलॉक हुआ तो राजनीति भी अनलॉक हो गई है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के विधायक क्वारंटाइन तो हुए हैं, कोरोना की वजह से नहीं, पॉलिटिकल क्वारंटाइन है और इस रिजॉर्ट में क्वारंटाइन हुए हैं। जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर ये शिवविलास होटल से रिजॉर्ट है, जहां पर कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय विधायकों को लाकर रखा गया है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं और उसे आरएलडी के 1 विधायक और निर्दलीय 13 विधायकों, बीटीपी और लेफ्ट के विधायकों का समर्थन है। इस तरह कांग्रेस का दावा है कि उसे 123 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी के पास 72 विधायक हैं।
बीजेपी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक का भी समर्थन हासिल है। इस तरह बीजेपी के साथ कुल 75 विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए हर उम्मीदवार को 51 वोटों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस आसानी से 2 सीटें जीत रही है, जबकि बीजेपी को राज्यसभा की 2 सीटें जीतने के लिए और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। सीटों की संख्या में बढ़त बनाने के बावजूद कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी उसके गेम को बिगाड़ सकती है। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप महेश जोशी ने डीजीपी को खत लिखकर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों और समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे चिन्हित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खरीद फरोख्त का चैप्टर खुला तो कांग्रेस की अंदरूनी तनातनी भी सामने आ गई। गहलोत और पायलट खेमे का दरार फिर से उभर आया। सूबे के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है। हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और पर्याप्त मात्रा से ज्यादा हमारे पास समर्थन है। मुझे लगता है कि कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत यह है धरातल पर हम सब लोग निष्ठावान लोग हैं। और एआईसीसी में सोनिया गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं राज्यसभा के, वो दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पर्याप्त बहुमत से ज्यादा मत लेकर यहाँ से सांसद बनकर जाएंगे। बीजेपी ने भी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की नब्ज को दबा दिया है। गहलोत के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पूछ रही है कि किसने 35 करोड़ का ऑफर दिया, किसको दिया। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले अभी सियासत के कई रंग देखने बाकी हैं। शुरुआत हो गई है। इसमें पायलट बनाम गहलोत की जंग भी देखने को मिलेगी, तो सियासी खरीद फरोख्त के चैप्टर का काला अध्याय भी देखने को मिल सकता है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। 19 जून को ही गुजरात में भी 4 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं और इस बार का चुनावी समर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए जूझ रही है, तो बीजेपी अपने 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों का जुगाड़ करने में जुटी हुई है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले रिजॉर्ट गुलजार है। कुछ दिन पहले तक ये रिजॉर्ट खाली थे। अब मतदान तक कांग्रेस विधायकों का अस्थायी आशियाना है। खरीद फरोख्त के डर से पार्टी सभी विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट या फार्म हाउस में भेजकर वोट बचाने की जुगत कर रही है। उन्नीस जून को 4 राज्यसभा सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस मात नहीं खाना चाहती। 2 सीटों पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं, तो 3 सीटों पर बीजेपी के अभय भारद्वाज, रामीला बेन बारा और नरहरि अमीन। लिहाजा एक एक वोट के लिए दोनों पार्टियों के दांव पेश शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार का चुनावी अखाड़ा आसान नहीं है। वर्तमान समीकरण के हिसाब से एक सीट की जीत के लिए 35 वोट चाहिए। ऐसे में कांग्रेस को दोनों सीट जीतने के लिए 70 वोट चाहिए। वहीं बीजेपी को 105 सीटों की दरकार है। अब आपको बताते हैं कि गुजरात में दोनों पार्टियों की मुश्किलें क्या है। कांग्रेस 2 मोर्चों पर जूझ रही है। पहली और बड़ी मुसीबत है अंदरूनी फूट। मार्च से अब तक 8 विधायक हाथ का साथ छोड़ चुके हैं, बचे हैं सिर्फ 65। कांग्रेस की दूसरी मुश्किल बीजेपी है। पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। ये गुजरात में आज कोरोना बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है और खास करके आज ही कल डॉक्टरों की पैनल ने बात की कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया। तो 20,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1200 से ज़्यादा लोग मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे समय में सरकार को जब लोगों को बचाने के लिए काम करना था, तो उन्होंने पूरी अपनी सत्ता, प्रशासन और पैसे विधायकों को खरीदने में लगाए। कांग्रेस का ये आरोप आया तो बीजेपी ने पलटवार का मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस का निष्फल नेतृत्व, कैंडिडेट सिलेक्शन का विरोध और आंतरिक गुटबाजी के कारण कांग्रेस अपने आप टूट रही है। कांग्रेस अपनी विचारधारा और नेतृत्व की निष्फलता छुपाने के लिए
बीजेपी पर झूठे एलिगेशन लगा रही है। राज्यसभा चुनाव के 3 सीटों पर फतह हासिल करना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज जैसा है। दरअसल बीजेपी को तीनों सीटें जीतने के लिए कुल 105 वोट चाहिए। फिलहाल बीजेपी के पास कुल 103 वोट हैं, जिनमें से 3 विधायक कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में हैं। ऐसे में अभी बीजेपी को 5 वोटों की जरूरत है। अब सबकी नजर एनसीपी के 1 वोट पर है, जिसने 2017 के चुनाव में पार्टी विहिप को नजरअंदाज कर कांग्रेस की बजाय बीजेपी को वोट दिया था। अहमद पटेल को जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय ट्राइबल पार्टी के छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा भी तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं, जिनसे फिलहाल दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसे में दोनों पार्टियां 1-1 वोट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कांग्रेस हर बार की तरह फिर से बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो हार्दिक पटेल अपनी ही पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। नहीं, हम पिछले 6-7 सालों की बात करें तो कांग्रेस के 27 से 28 विधायक इस्तीफा देके गए हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती है, लेकिन शायद हमारी भी कोई गलती होगी पार्टी की ओर से कि इतने सारे विधायक चले गए। तो मैं मानता हूं कि आत्ममंथन की जरूरत है। मौजूदा वोट पावर के हिसाब से कांग्रेस के 1 उम्मीदवार और बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की जीत पक्की है, लेकिन कांग्रेस को अपनी दूसरी और बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए जरूरी वोट के इंतजाम करने होंगे। राज्यसभा की 4 सीटों के नतीजे आने के साथ ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी राजनीतिक चाल कामयाब साबित हुई है। लेकिन फिलहाल तो ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने में जुटी हुई है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। बिहार में चुनावी तारीख का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। भय बनाम भरोसे के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री ने लालू परिवार पर निशाना साधा, तो उधर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो चुनाव के लिए लड़ रहे हैं और हम गरीबों के लिए। बिहार भले ही कोरोना से कराह रहा है, लेकिन चुनावी गाड़ी चल पड़ी है। सियासी गोटियां सेट की जा रही हैं, एजेंडा तैयार हो गया है। नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। सूबे के सीएम के निशाने पर लालू हैं और उनका परिवार। आरजेडी की सियासत है, केंद्र में लालू का परिवार वो 15 साल पुराना राज है, जिनका राग छेड़कर नीतीश कुमार भय बनाम भरोसे की सियासी लकीर खींच रहे हैं। नई पीढ़ी के लोगों को बताइएगा। अब बताइए, 14 साल से जिसका जन्म हो उस बेचारे को क्या पता पहले क्या था। साल 2 साल 3 साल का भी था, उसको भी क्या पता, उसको दिखाई पड़ता होगा कि शाम में कोई घर से निकलने का हिम्मत नहीं करता था। 15 साल पति पत्नी का राज था, बताइए। वैसे तो बीमार और सजा होने के बाद लालू रांची में हैं, लेकिन उनकी गूंज पटना के सियासी गलियारे में हमेशा सुनाई देती है। आज भी जब उनका जन्मदिन है तो जेडीयू ने पोस्टर के जरिए सियासी तीर छोड़ दिया। लालू परिवार के 73 संपत्तियों का हिसाब किताब जनता को बताया और हिसाब मांगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर उनके कार्यकर्ताओं ने पटना को पोस्टरों से पाट दिया है। आप देखिए इनकम टैक्स चौराहे पर किस तरीके से लालू के पोस्टर यहाँ बड़े बड़े लगे हुए हैं। लेकिन चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ही एक पोस्टर ठीक लालू के इस पोस्टर के बगल में जेडीयू की तरफ से लगाया है मजा किरकिरा करने के लिए। यहाँ आप देखिए किस तरीके से ये पोस्टर जो लगाया गया है, यहाँ पर लालू के 73वें जन्मदिन के मौके पर उनके 73 संपत्ति की श्रृंखला के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है। चंद रोज पहले भी पोस्टर के जरिए ही जेडीयू ने लालू राज के आतंक को दिखाया था। इस बीच लालू के जन्मदिन पर पटना से लेकर रांची तक आरजेडी ने पूजा पाठ किया। लालू के जन्मदिन पर उनके बेटे तेजस्वी यादव मिलने रांची रिम्स पहुंचे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रांची में हैं। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है और उनको इस अवसर पे बधाई देने आए हैं, बतौर पुत्र भी और पार्टी नेता भी। इसी रिम्स के प्राइवेट वार्ड में लालू यादव लॉज्ड हैं जब से उनका कन्विक्शन हुआ है फॉर्डर स्कैम के मामलों में। रांची तेजस्वी आए थे तो अपने पिता के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने, हालचाल जानने, पुत्र का धर्म निभाने, लेकिन पटना की सियासी राग जब कानों में पहुंची
तो जवाब देने में भी देर नहीं लगाई। जिनको जनता ने चुना, वोट दिया, आज दुख की बात है कि आज गरीब का पेट भरने की बात नहीं कर रहे, पेट नहीं भर रहे, बल्कि उनको चुनाव और उनकी कुर्सी की चिंता है। उनको चुनाव की चिंता करने दीजिए, हमको गरीब की चिंता है। सब कुछ ठीक रहा तो बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे, लेकिन जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है उससे तो लगता है कि अभी से ही चुनावी रणभेरी फूंक दी गई है। रांची से सत्यजीत के साथ पटना से रोहित सिंह, आज तक। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।